Hello everyone. So this is today's Leetcode daily challenge. So ये एक हार्ड प्रॉब्लम है. So ये एक हार्ड प्रॉब्लम था लेकिन आज हम इसको इतनी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि हार्ड लगेगा ही नहीं. हार्ड क्या ही होता है. जो क्वेश्चन हमसे लाइक नहीं हो पाता है उसे हम हार्ड बोल देते हैं या जिसको थोड़ा टाइम लगता है सोल्व होने में या कॉम्प्लेक्स होता है उसको हार्ड बोलते हैं. तो आज इसका इतना इजी वे देख लेंगे कि ये हार्ड लगेगा ही नहीं और इसको हम इजी बुलाना शुरू कर देंगे. ओके, चलो देखते हैं. सो ये क्वेश्चन क्या रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे nums and two integer array min k and max k. A fixed bound subarray of nums is a subarray that satisfy the following conditions. The minimum value in the subarray should be minimum of k, okay, and the maximum should be max of k, okay. And what we need to return here, return the number of fixed bound subarrays, okay. सो एज पर दिस क्वेश्चन कि हमें सिर्फ वही सब एरेस निकालने हैं जिसमें मिनिमम वैल्यू हो वो मिन के इक्वल हो और जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो मैक्स के इक्वल हो. अगर एक सब एरे लाइक अगर मैं ले लेता हूँ 5 4 3 2 1 एंड 6 and my min k is 1 and max k is 4. So I need to consider only those subarrays where min k is 1 and max k is 4. Okay, so like this is a subarray. Okay, and if I consider in a subarray 5, so that is not a valid subarray, and if I consider 6 in a subarray, so that is also not valid. Same the properties followed with min k. So अगर इस सब एरे में जीरो भी इंक्लूडेड होता, लेट्स से 6 से पहले आ रहा होता 0 and 6, okay, so I cannot include 0 in my sub array as well because the minimum value, if I include 0 in my sub array, that will get 0, which is sabotaging this condition. Okay, so I don't want to like include values which is less than min k and greater than max k. Okay, so let's pick up this example and we'll start solving from this example only. Okay, so 135275. Okay, so let's see this. Okay, so my nums array is 135275. Okay, where min k is 1 and max k is 5. So let me put index here as well, 0 1 2 3 4 and 5. Okay, this was my first example. Okay, so now I need to calculate those subarrays which are valid only. और valid के हमने conditions देख ली कि valid subarrays कौन कौन से होते हैं. Okay, so सबसे पहले brute force की बात कर लेते हैं क्योंकि brute force ही नहीं पता होगा तो कैसे क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे. करेक्ट. सो ब्रूट फोर्स क्या होगा कि मैं सारे सब एरेस को कैलकुलेट कर लूँगा. I will calculate all my sub arrays and सभी सब एरेस निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, वो आती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. बट दैट इज नॉट द केस ओनली. आई नीड टू चेक इज दैट सब एरे a valid sub array or not. So which will take the time complexity of order of n as well. क्योंकि उसमें मुझे min के भी फाइंड करना होगा और max के भी फाइंड करना होगा. जब min के 1 होगा और max के 5 होगा तो वो एक वैलिड सब एरे कहलाएगा. ओके, so the total time complexity if I follow the brute force is order of n, okay, and multiply by with order of n square. So total will be order of n cube.
ओके, सो क्या ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हमारा क्वेश्चन के कॉन्स्टेंट्स अलाउ करेंगे? नहीं, क्योंकि नम्स की लेंथ है 10⁵ तो एक्सीड हो जाएगा. Okay, so let's do some optimization in this question. So, okay, so let me write the nums array again. Nums was 1, 3, 5, 2, 7 and 5. Min case 1 and max case 5. Okay, so हमें find out क्या करना है, वो सब arrays जो इंक्लूड कर रहे हैं min के और max के, नॉट ग्रेटर देन max के, नॉट less than min k. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so if I start from the left side, okay, at the 0th position I got the minimum k. So of course I can include this, I can include this, I can include this, I can include this. At this position I got my max k as well. Okay, so this will become my valid subindex. But when I reached fourth subindex, this is not this value cannot be included in my subarray because it will be damaging this condition of max k. Now max will be 7 in this case. So what we need to do, we need to store somewhere like where I got the those index. I need to store those index which are disturbing my property of a valid subarray. Okay, so can I store the recent value of my min k and max k? And we will store some bounding index as well. What does bounding index mean? So bounding index. So bounding index are those indexes which are disturbing my quotients property. तो ठीक है, ये बहुत ही एक क्या कहते हैं कि ना, ये वाली डेफिनेशन को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे ताकि इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ये हम हमेशा पढ़ते रहेंगे. ओके, जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे रिसेंट वैल्यू मीन के भी चाहिए था और मैक्स के भी चाहिए था, जिससे मैं काउंट ऑफ सब एरेज निकाल सकूं. तो min position which will store the min key, the recent value of the min key. Okay, so initially let me trigger this as -1. सेम मैक्स पोजीशन भी चाहिए होगी मुझे, मैक्स पोजीशन भी मैं इनिशियली -1 रख सकता हूँ, और एक मैं बॉन्ड लेफ्ट बॉन्ड करके एक इंडेक्स स्टोर कर लेता हूँ जो कि मेरा बॉन्डिंग इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा. ओके, okay, so why we need min position and max position, why we are storing like the recent values? And so the main intuition behind min position and max position is that कि जैसे जैसे हम recent values को स्टोर करते जाएंगे min पोजीशन की मैक्स पोजीशन की, और उस पोजीशन से जैसे कि उसकी इन दोनों में से min पोजीशन और मैक्स पोजीशन की मिनिमम वैल्यू से जो लेफ्ट बाउंड का डिस्टेंस होगा, लाइक जो बाउंडिंग इंडेक्स का डिस्टेंस होगा, वो मेरा काउंट ऑफ सब एरेज होंगे. जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में वो मेरा काउंट ऑफ सब एरेज होगा, और मैं हर इंडेक्स पे काउंट ऑफ सब एरेज को फाइनल आंसर में इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, तो जिससे मेरे सारे काउंट ऑफ सब एरेज आ जाएंगे. ओके, सो एक ट्राई रन करके देखते हैं जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं कि काउंट कैसे करना है. तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, min ऑफ min पोजीशन,
max position minus LB. LB is nothing my left bound, which I also can say as my bounding index, nothing else. This is my bounding index where the property of min k and max k get disturbed. कि मुझे min k से छोटा कोई एलिमेंट मिल गया और max k से कोई छोटा एलिमेंट मिल गया. इनिशियली मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ -1 से कि मैं हर एलिमेंट को इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि अभी तक मुझे कोई बाउंडिंग इंडेक्स मिला ही नहीं. ओके कि जो भी एलिमेंट मैं इंक्लूड करूँगा उसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ एक वैलिड सब एरे की तरह. ओके सो लेट्स सी अभी जो मेरा शुरू करते हैं. ओके यहाँ पे क्या था 1 था करेक्ट. ओके इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं. सो माई करंट इंडेक्स इज आई. ओके सो हमें किन किन इंडेक्सेस के लिए सम निकालना पड़ेगा. सभी इंडेक्सेस के लिए करेक्ट. सभी को हम कर देंगे. तो ये हमारे इंडेक्सेस हो गए 0 1 2 3 4 एंड 5. ओके सो 0 पे आता हूँ मैं. सो 0 इज इक्वल टू माई मिन के. तो मैं ये रिसेंट पोजीशन हो गई मिन पोजीशन की, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा 0 से. मिन पोजीशन. ओके सो मिन पोजीशन मिनिमम निकालना है दोनों. मिन भी लिख देते हैं. मिन पोजीशन इज 0. मैक्स पोजीशन हमें मैक्स मिला ही नहीं है तो वो -1 ही होगा. और लेफ्ट में भी क्या है मेरा -1. ओके सो -1 प्लस 1 विच इज 0. ओके अभी तक एक भी काउंट नहीं मिला है सब एरे का. ओके आई को मैं यहाँ लेके जाता हूँ. क्या ये मेरा मिन के या मैक्स के इक्वल है. क्या मेरा मिन के से छोटा है और मैक्स के से बड़ा है. नो दिस इज between the range of min k and max k, so this can be included in the valid subarray. Okay so left bound भी मैं अपडेट नहीं करूँगा, ना ही max position ना ही min position. Okay so I के लिए कैलकुलेट करेंगे दोबारा. min 0 -1 -1 which is nothing equal to -1 plus 1 is 0. Okay मैं I को यहाँ लेके जाता हूँ. 5 इज इक्वल टू मैक्स के. ओके तो मैं इंडेक्स अपडेट कर दूंगा. लेफ्ट बाउंड मिला है, कोई बाउंडिंग इंडेक्स नहीं मिला अभी तक. तो मेन तक जाता हूँ. ओके मेन पोजीशन इज 0, मैक्स पोजीशन इज 2 -1. ओके सो मिनिमम ऑफ 0 and 2 is minimum -1 which is +1. this is 1. बट इट मीन्स कि मुझे एक सब एरे मिल गया जो कि वैलिड सब एरे. Okay now if I jump to next index, that is this is in between the range of min k and max k, so this can be a valid subarray. Okay so क्या मुझे min position और max position अपडेट करने की जरूरत है. नहीं. Okay ना ही लेफ्ट बाउंड की क्योंकि ये between the range है. Okay so इसके लिए भी मैं फाइंड आउट करूँगा 0 0,2 -1. so this is again come down. Now I came to fourth index where the element value is 7. क्या ये min की और max के रेंज के बिटवीन में है. नहीं है. तो ये क्या हो गया, ये हमारा बाउंडिंग इंडेक्स हो गया कि ये इंडेक्स अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ तो मेरे वैलिड सब एरे होने के चांसेस 0 हो जाएंगे क्योंकि मैं इसको इंक्लूड ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैक्स 7 आ जाएगा अगर मैं ये इंक्लूड करूँगा. तो लेफ्ट बाउंड को मैं अपडेट करूँगा फोर्थ इंडेक्स. ओके now for this index let me calculate min of 0,2 minus 4. so 0 minus 4 is -4. so what is -4 representing कि जो मेरे सब एरे हैं उनका काउंट -4 हो गया. so -4 तो हो ही नहीं सकता है ना. तो मिनिमम काउंट क्या ही हो सकता है. मिनिमम काउंट कैन बी 0. ओके सो इसको हम 0 कंसिडर करेंगे. फिर मैं इस पे जाऊंगा आई पे. मेरा लेफ्ट बाउंड अपडेट हो चुका है 4 पे. ओके सो अब मेरी रिसेंट वैल्यू क्या आई है मैक्स के की विच इज 5. ओके लेट मी अपडेट मिनिमम ऑफ 0,5 -4 which is nothing. 0 minus 4 is -4. so -4 cannot be a valid count for the sub arrays. So that is my final
like I iterated the whole array. Now 1 plus 1 is 2. So 2 is the answer for this problem statement. So now I am handling this condition as well. How can I handle this condition? Like the count is equal to math dot max, dependent on your specific language. Let me write a pseudo code for this condition only. Max of 0, comma. Now what I need to do, I will calculate this min of min position, max position minus left bound. Okay, so if this thing get negative, if this thing get negative, if this thing get negative, I will consider 0, and if it is greater than 0, and if it is positive, I will consider this only. And add, I will maintain a sum जिसके अंदर मैं काउंट को प्लस करता जाऊंगा. सो कंडीशंस क्या है? मिन पोजीशन को अपडेट करने की, मैक्स पोजीशन को अपडेट करने की, और लेफ्ट बाउंड को अपडेट करने की. सो इफ एट द टाइम माय nums of I is equal to min k, मैं उसी टाइम ही मेन पोजीशन को अपडेट कर दूंगा. सो मेन पोजीशन इज इक्वल टू आई हो जाएगा मेरा. ओके, द टाइम when nums of I is equal to max of k, मैं उसी टाइम मैक्स पोजीशन को भी I से अपडेट कर दूंगा. ओके, लेफ्ट बाउंड को मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ? जब दोनों ही प्रॉपर्टी, मतलब कि जब जैसे कोई एलिमेंट आया वो इस रेंज से बाहर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों इंक्लूसिव है? अगर 1 to 5 कोई भी एलिमेंट आया, that is a valid element that can be included in my subarray. बट जैसे ही इससे कोई छोटा एलिमेंट आया और इससे कोई भी बड़ा एलिमेंट आया, इस रेंज के बाहर और इस रेंज के भी बाहर एलिमेंट आया, उस टाइम मुझे लेफ्ट बाउंड अपडेट करने की जरूरत है. तो या तो nums of I मेरा लेस देन है min k से, और मेरा nums of I ग्रेटर देन है min k के, max k. So at that time I will update my left bound is equal to I. Okay, so do I need to follow this property only कि मुझे लेफ्ट से राइट में ट्रेवर्स करना है? नो, मैं तो राइट से लेफ्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन राइट से लेफ्ट भी कर सकता हूँ तो मुझे राइट बाउंड मेंटेन करके रखना पड़ेगा. करेक्ट. तो जैसे जो भी कंफर्टेबल हो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो ये ही सूडो कोड है, ये काउंट मेंटेन करना है और सम में डाल देना है. अगर चलो एक बार कोड देख लेते हैं फिर भी. ओके, सो हमने एक सम मेंटेन किया, एक मिन पोजीशन मैक्स पोजीशन दोनों को -1 लिया, लेफ्ट बाउंड भी लिया. अब ये मेरा बाउंडेड इंडेक्स मिल गया, यहाँ पे मुझे मिन पोजीशन को अपडेट करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि मिन के की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे मैक्स के की मिल गई, तो मैंने मैक्स पोजीशन को, और हर इंडेक्स के लिए मैंने काउंट को अपडेट किया है. काउंट को कैसे अपडेट किया है? वही जो मैंने सूडो कोड में दिखाया था, मैक्स लिया, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो मैं ये लूँगा. ओके, और नेगेटिव आता है तो मैं 0 लूँगा. उसके बाद मैं सम के अंदर इस काउंट को इंक्रीमेंट करवा दूंगा और सम को रिटर्न कर दूंगा. तो एक बार रन करके देखते हैं.
ओके एंड एक बार सबमिट भी करके देखते हैं। सो दिस इज रनिंग वेरी फाइन। ओके, और इसकी अगर अब बात करें यार, इतना सब कुछ करा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताएंगे तो मजा ही नहीं आएगा, है ना। करेक्ट, सिर्फ बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर क्या रही है इसमें। सिंपल मैं कर क्या रहा हूँ, हर एक ith इंडेक्स पे चेक कर रहा हूँ, मिन पोजीशन, मैक्स पोजीशन और लेफ्ट बाउंडिंग इंडेक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, काउंट निकाल रहा हूँ और उसको सम में डाल रहा हूँ। क्या मैं किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं ना, मैं हर एक एलिमेंट को सिर्फ वन टाइम एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, बट इट मीन्स कि मैं हर, अगर मैंने एक लूप भी चलाया है 0 से लेकर n तक का, मैं हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही आइटरेट कर रहा हूँ, एक बार ही एक्सेस कर रहा हूँ। सो दिस विल नथिंग गिव्स मी ऑर्डर ऑफ n ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, है ना। जो भी पूछेगा पूछेगा तो दोनों पूछेगा ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। ये तो है नहीं कि एक चीज पूछेगा एक चीज नहीं पूछेगा, तो दोनों बता देते हैं। तो क्या मैं कोई भी एक नया एरे मेंटेन करके रख रहा हूँ कहीं पे भी जहाँ पे मैं ये सारी वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ? नहीं, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड टेक्निक। कैरी फॉरवर्ड टेक्निक क्या कर रहा है, एक सम है, सम वेरिएबल है, मैं सम वेरिएबल में ही हर बार अपना काउंट मेंटेन कर रहा हूँ। ओके, काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ कैरी फॉरवर्ड टेक्निक I don't have to maintain a separate array or a separate data structure to store all the values of count. Okay, so I can optimally store the sum variable using carry forward technique in order of one space, which is nothing I can say in a constant space complexity. Okay, so that's it. Okay, okay, so thank you.